Listen to trigonometry, a new chapter of class 10, chapter number 8. So what actually trigonometry is? Trigonometry is basically used to measure something that you can't reach with a meter and a meter tape. For example, you have a monument like this and you want to measure its height from a person standing over here wants to measure its height. So what you have to do is just to know the angle at which he is looking at the top of the monument and the distance from the foot of the monument to him. That means let it be B or L. Okay. So this is the way by which he can get the height of the monument with some specific formulas which we will learn in this chapter. So, and some of the new terms we will learn over here, say sine theta, cos theta, tan theta, cosine theta, sec theta, and the third one is last one is cot theta. These are the terms we are going to learn over here, and the whole chapter will be on the basis of these terms. These are the various forms of angles which we'll learn over here soon. तो चलो देखते हैं अभी कैसे करके इनको रिप्रेजेंट किया जाता है. For sine theta, let's draw a diagram. This is a triangle A, B and C. Okay. So this is the angle A and B is right angle of the triangle. So how will represent here? This is theta. Okay. Let this be theta or angle A, whichever you want to know, call it as. So sine A is equal to, that is perpendicular to it, BC by the hypotenuse AC. This is the formula, or let it in the form of Pythagoras theorem, it's H, it's P and this one is base. In case of cos theta or cos A, its base, that is AB by AC. It's B by H and this one is B by H, and the third one is tan theta, which is perpendicular by base, that is BC by AB. So this is perpendicular by base. You can write this in this manner. And similarly, sine theta and cosec theta are reversed to each other. Cosec theta is equal to 1 by sine A. Similarly, sec A is equal to 1 by cos. Cos A. Again, cot A is equal to 1 by tan A. So with these formulas, we'll start our trigonometric exercises and try to solve some of the problems. तो फिर इसे कैसे करेंगे, प्रॉब्लम्स को एक आध करके देखते हैं पहले. ठीक है, चलो मूव करते हैं प्रॉब्लम्स की ओर. पहले एक आध एग्जाम्पल समझ लेते हैं, फिर प्रॉब्लम्स की ओर मूव करेंगे. Let's start with the first example. Initially we will do examples, then we will solve problems from the exercise.
So we have the diagram like this. Okay, so what it's given is tan A is equal to 4 by 3. It's the ratio. Its ratio means we already have discussed that tan A is equal to, it is named as A and B and C for angle A. We have to do it for angle A. All the trigonometric ratios like sin A, cos A, tan is given, cot, sec, cosec, all this. Okay, तो इसमें क्या करना है, tan A का फॉर्मूला क्या था, परपेंडिकुलर बाय बेस, दैट मीन्स BC बाय AB, बट इट्स गिवन इन रेशियो, मतलब 4 by 3. सो वी कैन से 4K and 3K. Okay, let K be the constant. K be the constant. So AB is equal to 3K and BC is equal to 4K. Okay, so it's done. Now what we have to do is we have to use the Pythagoras theorem by using PT. Okay, Pythagoras theorem. With this Pythagoras theorem, what we have to do is AC square is equal to BC square plus AB square. This is Pythagoras theorem. Hence, AC square is equal to BC square. So BC is 4K square plus it's 3K square is equal to 16K plus K square plus 9K square or 25K square. So AC square is equal to, or AC will be equal to root over 25K square, which will be as 5K. Okay, so this is the third one, AC. From here we can find easily the remaining trigonometric ratios. So for sin A, it's equal to, that's perpendicular, that means BC by AC, which is equal to, BC is 4K by 5K. दोनों K को काटेंगे तो आ जाता है 4 by 5 रेशियो हो गया. ये हो गया साइन का रेशियो. फॉर cos A, it's again base, that means AB by AC, that is equal to 3K by 5K, that is equal to 3 by 5. Similarly, we have cos A, then we have tan is given, we have cosec A, which is equal to reverse of sine, that is 1 by sin A, which is equal to 5 by 4. For in the same way sec A का क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स हो जाएगा cos का, that means 5 by 3, and cot will be is equal to reverse of 1 by tan A, that is equal to tan का वैल्यू दिया हुआ है ऑलरेडी एक्सरसाइज में 4 by 3, 3 by 4. So these are the trigonometric ratios. In this way we will find the remaining trigonometric ratios
सेम पैटर्न। विल डिस्कस अनदर क्वेश्चन। चलो अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं, फिर डायरेक्टली एक्सरसाइज में कूद जाएंगे। तो एक ट्राइंगल दिया हुआ है ACB बोल के, जैसे नाम दिया हुआ है उसी तरह से करना है, ठीक है। उसमें क्या बोला है, बोला है कि राइट एंगल एट C, तो इसको राइट एंगल मतलब ये C है, तो इसे B पकड़ लेते हैं, इसे A ले लेते हैं, ठीक है। अब बोला है AB इज इक्वल टू 29, AB दैट इज हाइपोटेन्यूस 29 है, BC मतलब बेस है 21, ठीक है। और अब एंगल ABC मतलब ये वाला एंगल ये है थीटा, मतलब इसी के साथ सब प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। तो फिर थीटा के वैल्यू के लिए हमें साइन थीटा कॉस थीटा के बारे में जानना है। तो हम लोग इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है, ACB, इस ट्राइंगल में बाय यूजिंग PT पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC का वैल्यू पता नहीं है तो AC को एक साइड में लेके आ जाते हैं, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, मतलब इसे इधर लेके आ गए, ठीक है, समझ लो। अब इनका वैल्यूज पुट करते हैं। AB स्क्वायर कितना है 29 का स्क्वायर माइनस BC का वैल्यू कितना है 21 का स्क्वायर। अभी स्क्वायर नहीं करेंगे, ये कुछ हमें लग रहा है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला, ठीक है। तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करते हैं। इसमें क्या हो जाएगा 29 माइनस 21 एक हो जाएगा, 29 प्लस 21 दूसरा हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमारा रिजल्ट क्या आएगा, ये हो जाएगा 29 से 21 मतलब 8 आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 29 40, ये हो गया 40 50 हो गया। तो 50 इंटू 8 5 ज़र 40 400 आ गया, ठीक है। तो फिर 400 आ गया, दैट मीन्स AC स्क्वायर इज इक्वल टू 400, और वी कैन राइट AC इज इक्वल टू रूट ओवर 400 विच इज इक्वल टू 20। तो ये हो गया हमारा 20, सॉरी ये क्या लिख रहे हैं 20 हो गया, तो ये वैल्यू आ गया हमारा 20। तो फिर आगे सॉल्व करेंगे इसे। अब हमें निकालना है साइन स्क्वायर, यहाँ पे देख लो एक दिया हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा एक नंबर लिखते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ओके। तो कॉस का वैल्यू क्या आता है, कॉस का वैल्यू होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, दैट मीन्स BC बाय AB का स्क्वायर प्लस साइन का वैल्यू क्या होता है AC बाय AB का स्क्वायर। तो ये हो गया दोनों वैल्यूज। अब इनका वैल्यूज पुट करते हैं। BC इज 21 बाय 29, ओके, इसका स्क्वायर प्लस AC का वैल्यू है 20 बाय 29 का स्क्वायर, ओके। फिर इसको फर्दर मूव करते हैं, इससे अभी नहीं मल्टीप्लाई में ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, ओके। तो फिर 21 का इसको कर देते हैं 29 का स्क्वायर, ओके। दोनों के नीचे 29 है, दैट मीन्स ये 21 का स्क्वायर ही बैठेगा। 21 का स्क्वायर होता है 441, ओके, माइनस 400 प्लस 400, ओके। दैट मीन्स ये क्या हो जा रहा है 441 और 400 हो जा रहा है
81 बाय 29 का स्क्वायर होता है 881, सॉरी 441, ओके 29 स्क्वायर इज ऑल्सो 841, ओके। तो फिर ये 841 कट गया, इट मीन्स 1, इसका वैल्यू 1 आ गया। और एक बार अच्छे से देख लो, 400 और 841 बाय 29 का स्क्वायर भी होता है 841, दैट इज इक्वल टू 1। ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू। उसी तरह से इसका दूसरा वाला करेंगे तो उसे भी इसी तरह से करेंगे। ए स्क्वायर माइनस, इसमें जैसे प्लस था तो फिर इसमें फॉर्मूला नहीं लगा, जब माइनस होगा तब उसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। इस तरह से ये सॉल्व हो जाएगा, ओके। देख लो अच्छे से एक बार, ये ट्रायंगल को पकड़ लिए, ट्रायंगल में पहले तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दिए, फिर थ्योरम लगाने के बाद हमारा वैल्यू आ गया एक साइड का 20 जो रिमेनिंग साइड था। अब जब रिमेनिंग साइड मिल गया तब अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला जैसे था साइन थीटा कॉस थीटा कॉट थीटा टैन थीटा कुछ भी निकाल सकते हो, तो उसी तरह से निकालना है। फिर अपना जैसे प्लस माइनस इंटू डिवाइड करना सीखे हो प्रीवियस क्लासेस में, उस तरह से कर लेना है, बहुत इजी तरीके से हो जाएगा। अब डायरेक्टली हम लोग एक्सरसाइज में कूदेंगे और एग्जाम्पल में नहीं वेस्ट करेंगे टाइम। तुम लोग ट्राई कर लेना एक बार एग्जाम्पल्स और देख लेना, अगर कोई डाउट होता है तो ज़रूर कमेंट करके बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो अब डायरेक्टली एक्सरसाइज में कूदते हैं। चलो एक्सरसाइज में कूदते हैं डायरेक्टली। एक्सरसाइज में है पहला क्वेश्चन 8.1 का, एक ट्रायंगल दिया हुआ है, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब उसमें दिया हुआ है आपका ये साइड्स दिया हुआ है। पहले तो दिया हुआ है एंगल एट बी, राइट एंगल है, ये बी का राइट एंगल है, ओके। अब ए बी बता दिया है, ए बी इज इक्वल टू 24 और बी सी 7। तो ए बी, इसमें से किसी को भी ए किसी को भी बी ले सकते हैं, ठीक है। पहले हम लोग को साइन का प्रॉब्लम सॉल्व करने बोला, इसीलिए साइन ए के ये बोला है, और मतलब एंगल ए है ना, इसीलिए इसको बेस एंगल पकड़ लिया है। तो फिर हमारा फॉर्मूला अच्छे से काम करेगा, मतलब वो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस और बेस बाय हाइपोटेनियस, ओके। तो ये हो गया साइन ए। तो अब हो गया 24 और बी सी इज 7, ये दोनों दिया हुआ है गिवन। तो हमें पहले क्या करना है, इन ट्रायंगल ए बी, इन ट्रायंगल ए बी सी हमें पहले तो निकालना है कि बाय यूजिंग पीटी, पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है हमें। फिर हाँ, तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम so we can write it as AC square is equal to AB square plus BC square। तो फिर क्या होगा, AC square is equal to AB square plus BC square, मतलब 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, दैट इज कहीं पे जाके 576 आएगा प्लस 49 आएगा, दैट इज 625 विच इज इक्वल टू 25, ओके। तो फिर ये 25 आ गया, 25 हो गया। अब हम लोग यहाँ पे इजीली साइन और कॉस का वैल्यूज निकाल सकते हैं। साइन मतलब है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, साइन मतलब है साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, दैट इज बी सी बाय हाइपोटेनियस, दैट इज ए सी। सो इट विल बी 7/25। ये हो गया हमारा साइन का वैल्यू। इसी तरह से हम लोग निकालेंगे कॉस का वैल्यू। कॉस का वैल्यू क्या होगा हमारा, कॉस का वैल्यू होगा
cos A is equal to 24 that is AB by AC ये होगा। तो फिर AB by AC मतलब क्या हो रहा है, इज इक्वल टू 24/25। ये दोनों वैल्यूज निकल गया। अब हमें बताना है साइन सी और कॉस सी, मतलब अब हो जाएगा सी एंगल बेस एंगल, मतलब फिर साइन सी, तब डायग्राम थोड़ा बदल जाएगा, डायग्राम हो जाएगा कुछ इस तरह का। ये हो गया 24, ये हो गया 7, ये हो गया 25 और ये हो गया ए अपना, ये हो गया बी और ये हो गया सी। अब ये हो गया साइन सी एंगल, ठीक है। तो इस तरह से अब करेंगे, देख लो अच्छे से डायग्राम देख लो, ए स्क्रीन से निकल गया था, ए सी बी देख लो 25, 24 और 7 कुछ इस तरह से डायग्राम बन गया। अब इसमें भी वही फॉर्मूला लगाना है, परपेंडिकुलर मतलब यहाँ पे हो जा रहा है ए बी बाय हाइपोटेन्यूस मतलब हो जा रहा है ए सी। तो फिर क्या हो जाएगा 24/25 ये हो गया अपना एक, और cos सी इज इक्वल टू क्या हो जा रहा है बेस दैट इज बी सी बाय हाइपोटेन्यूस ए सी। तो फिर क्या हो जा रहा है ये 7/25। इस तरह से हमारा वैल्यूज निकल गया। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज के। और भी प्रॉब्लम्स देख लेते हैं एक्सरसाइज का। ये हो गया एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। ओके, अब मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को थोड़ा अच्छे से देख लेंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2, इसे कैसे करना है। इसमें क्या दिया हुआ है, एक ट्राइंगल दे दिया है ऑलरेडी पी क्यू आर करके, जिसमें क्यू में राइट एंगल है, फिगर में दे दिया है, और पी क्यू है 12 सेंटीमीटर एंड पी आर है 13 सेंटीमीटर। ओके, तो फिर हमें निकालना क्या है, बोला है tan p माइनस कॉट आर निकालना है। tan p और कॉट आर का सब्सट्रैक्शन करना है। तो पहले तो हमें इसमें कुछ नहीं करना है, पहले तो हमें सिंपली पाइथागोरस थ्योरम लगा देना है। ओके, तो फिर पाइथागोरस थ्योरम में क्या होगा, बाय यूजिंग पीटी, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके क्या हो रहा है हमारा पी क्यू प्लस पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर। ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ओके, तो फिर अब हमारे पास क्यू आर नहीं है, तो क्यू आर इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। ये हो गया। तो फिर क्या करना है हमें, इसमें रूट ओवर अब बैठा देना है वैल्यू 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। ओके, तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देख लो अच्छे से। 13 का स्क्वायर माइनस 12, ये बड़े नंबर, ये तो छोटे नंबर है, इसमें तो हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, मगर बड़े नंबर जब होंगे तब इसे फॉर्मूला में डाल देंगे तो इजीली हो जाएगा। जैसे 13 माइनस 12 और दूसरा हो गया 13 प्लस 12। ओके, तो फिर ये कुछ इस तरह से आ गया, 13 माइनस 12 इज 1 इंटू, और 13 माइनस 12 हो रहा है, तो 13 माइनस 12 कुछ क्या आ जा रहा है, 13 माइनस 12 और 13 प्लस 12 इज 25। तो फिर ये हो गया हमारा 25 दैट इज इक्वल टू 5 आ गया हमारा आंसर। तो फिर हमारा क्यू आर इज इक्वल टू 5 हो गया। ओके, अब मूविंग टू द क्वेश्चन, अब tan p निकालना है। इस तरह से हमारा क्यू आर आ गया 5। अब हम लोग को देखना है अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या है। पहले तो हम निकाल लेते हैं tan p। tan p मतलब p होगा बेस एंगल। ओके, बेस एंगल p है, तो फिर परपेंडिकुलर बाय बेस मतलब हो जाएगा आर क्यू बाय पी क्यू दैट इज इक्वल टू 5/12। ये हो गया हमारा tan p। उसी तरह से cot r निकालना है। cot r मतलब होता है 1/,
tan r, ठीक है, मतलब tan r का रिवर्स हो जाएगा। पहले tan r निकालते हैं, तो tan r इज इक्वल टू tan, मतलब r को अब बेस एंगल ले लेना है हमें, तो r को अगर बेस एंगल ले लेंगे तो क्या होगा, देख लो अच्छे से, बेस एंगल r, तो फिर हो जाएगा परपेंडिकुलर, मतलब 12/5 आ रहा है, विच इज और देयरफॉर cot r इज इक्वल टू 5/12, ये हो गया हमारा cot r। अब हमारा क्वेश्चन में कूदना है हमें, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है हमारा, देख लो अच्छे से, प्रॉब्लम में दिया हुआ है, प्रॉब्लम में जो दिया हुआ है tan p माइनस cot r, ये दिया हुआ है। अब वैल्यूज पुट करते हैं, tan p का वैल्यू है 5/12 माइनस cot r का वैल्यू है 5/12, तो 5/12 5/12 5/12 में से 5/12 माइनस हो गया, कुछ नहीं बचेगा, दैट इज इक्वल टू 0, तो हमारा आंसर आ गया 0, ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, एक्सरसाइज वही है 8.1 का। तो इसमें दिया हुआ है साइन का वैल्यू दिया हुआ है 3/4। इस तरह का एक क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल में सॉल्व किया है, अभी किया है इसी क्लास में, थोड़ा फॉरवर्ड करके देख लो, ये किया हुआ है, फिर भी एक बार और ट्राई कर लेते हैं। उसमें निकालना है cos A और tan A, एकदम पहला वाला किए थे जो एक्सरसाइज का प्रॉब्लम। ओके, तो फिर देखो सिंपली साइन का दिया हुआ है, मतलब कुछ दिया हुआ है कुछ नहीं दिया हुआ है। अब देख लो क्या करना है, पहले तो हम लोग डायग्राम बना लेते हैं, कुछ करे या ना करे डायग्राम बना लिया करो। ये हो गया अपना डायग्राम, ओके, इस तरह से बना दिए। अब बोला है ए, मतलब बेस एंगल ए को ले लेते हैं, यहाँ पे बी दे देते हैं, यहाँ पे सी दे देते हैं, ओके, ये हो गया 90 डिग्री, ये है बेस एंगल। अब यहाँ पे दे दिया है तो यहाँ पे लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन, ठीक है, लेट के बी ए कांस्टेंट, ओके, के को एक कांस्टेंट ले लेते हैं, तो फिर ये हो गया हाइपोटेनियस है 4k, ओके, और साइन थीटा मतलब होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, मतलब ये वाला साइड होगा 3k, ओके। पहले तो हमें ये निकालना है बाय यूजिंग पीटी, ओके, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहे हैं इन ट्राइंगल ए बी सी, ओके। अब क्या करना है, इसमें लिखना है ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो फिर ए सी और बी सी दिया हुआ है, ए बी निकालना है, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ए बी को एक तरफ रख देते हैं, ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, और ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, ओके, ये कुछ इस तरह का आ गया। अब देख लो क्या करना है, ए सी का वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, ए सी का वैल्यू क्या है, ए सी मतलब 4k का स्क्वायर माइनस बी सी मतलब है 3k का स्क्वायर, ओके। तो फिर मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेप, अच्छे से देख लो, समझ लो अच्छे से, 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर, ओके, तो फिर ये हो गया 16 माइनस 9 7k स्क्वायर, ओके। अब 7 तो नहीं निकलेगा, तो अंडर रूट 7k बाहर निकल गया, ओके, रूट से, तो ये हो गया हमारा ए बी का वैल्यू, ए बी का वैल्यू हो गया ये, ओके। तो फिर आगे देखते हैं फर्दर, क्या करना है हमें, अब निकालना है हमें cos A। cos A मतलब है, A जब बेस एंगल है तब होगा बेस बाय हाइपोटेनियस, मतलब ए बी बाय ए सी, दैट इज इक्वल टू ए बी, ये हो गया रूट 7k
बाय हाइपोटेनियस है 4k, के कट गया तो फिर ये हो गया √7/4। ये हो गया एक हमारा आंसर। और दूसरा है tan a निकालना है। tan a इज इक्वल टू, tan a कैसे निकालेंगे? tan a का फॉर्मूला क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय बेस, तो फिर हो गया BC बाय AB। तो इस तरह से हमारा अब क्या होगा? 3k/√7k, के कट गया तो 3/√7। ये हो गया हमारा tan a का वैल्यू। तो इस तरह से हमारा दो आंसर निकल गया, ये एक नंबर, ये दूसरा नंबर। इस तरह से ये वाला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे और ट्राई करके देखना घर में। अगर कहीं पे कोई क्वेरीज हुआ तो कमेंट करके ज़रूर बताना, फिर से समझा देंगे, ठीक है। और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। एक्सरसाइज में देखो बुक में क्वेश्चन नंबर जो है 4 पूरे इसी के तरह का है। इसमें भी दिया हुआ है 15 cot a इज इक्वल टू 8, मतलब cot a का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 8/15, मतलब रेशियो में आ जाएगा, ठीक है। तो फिर उसको इसी तरह से सॉल्व कर देना है जैसे बाकी क्वेश्चन सॉल्व किया। एक बार देख लो, नहीं देख लो, ये है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी काफ़ी हद तक क्वेश्चन नंबर 3 के तरह ही है, बस इसमें थोड़ा फॉर्म बदल दिया है। जैसे इसमें कॉट दे दिया है गिवन में, कॉट ए, इसके आगे 15 दे दिया इज इक्वल टू 18। तो इसे हम लोग इक्वल टू 8, इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कॉट ए इज इक्वल टू 8/15। तो ये एक रेशियो के फॉर्म में आ गया। अब कॉट मतलब होता है रिवर्स ऑफ tan, दैट मीन्स इफ tan इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, कॉट होता है कॉट इज इक्वल टू 1/tan a। तो tan होता है रिवर्स ऑफ, इसका होता है रिवर्स, कॉट का रिवर्स। तो tan का होता है क्या? परपेंडिकुलर बाय बेस, दैट मीन्स इक्वल टू बेस बाय परपेंडिकुलर। तो फिर बेस बाय परपेंडिकुलर हो गया 8/15, ये हो गया वैल्यू इसका। तो फिर अगर डायग्राम बनाते हैं, यहाँ पे बनाते हैं, ओके, कुछ इस तरह का डायग्राम बनेगा ABC। तो ABC अगर बनता है, B राइट एंगल है और बेस एंगल इसको A कर देते हैं, ठीक है, बेस एंगल को नीचे कर देते हैं A और इसको C। तो फिर ये हो गया बेस एंगल अपना। तो फिर बेस बाय परपेंडिकुलर मतलब हो गया लेट के बी कांस्टेंट, के को कांस्टेंट ले लिए, ठीक है। तो के को एक कांस्टेंट ले लिए, तो फिर क्या हो रहा है? तो फिर हो जा रहा है बेस बाय परपेंडिकुलर हो जा रहा है 8 हो जा रहा है बेस 8 के, और परपेंडिकुलर हो जा रहा है 15 के। इस तरह का फॉर्म आ गया। अब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे पाइथागोरस से। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पीटी, पाइथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम को जब यूज करेंगे तो इसका कुछ वैल्यू आएगा, AC इज इक्वल टू दैट इज 17, ओके। तो 15, 17 एंड 8, अब तीन वैल्यूज हमें मिल गया। AC इज इक्वल टू 17, BC इज इक्वल टू 15 और AB इज इक्वल टू 8। अब इन्हें बैठा देना है फॉर्म्स में, बस। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। चलो फिर मूव करते हैं एक और दूसरे प्रॉब्लम की तरफ, वो भी उसी तरह का है। 5th नंबर प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 5। 5th क्वेश्चन में भी उसी तरह से दिया हुआ है, सेक थीटा का वैल्यू दिया हुआ है। अब थीटा मतलब है बेस एंगल, यहाँ पे 13/12, सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना है। पहले तो हमें इसे सॉल्व करके अपना वैल्यू निकाल लेना है पाइथागोरस थ्योरम से। थर्ड वाला क्या होगा, ठीक है, थर्ड साइड मतलब ये तो दे दिया है सेक थीटा मतलब होता है कॉस थीटा का रिवर्स। कॉस मतलब क्या है? कॉस इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनियस। तो ये हो जाएगा क्या होगा, सेक इज इक्वल टू हाइपोटेनियस बाय बेस हो जाएगा, ठीक है। तो हाइपोटेनियस बाय बेस मतलब हो जा रहा है 13/12। अब पाइथागोरस जब यूज करेंगे तो 13 का स्क्वायर, सो बाय यूजिंग पीटी, पाइथागोरस थ्योरम को जब यूज करेंगे तब क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब परपेंडिकुलर नहीं है हमारे पास यहाँ पे, तो परपेंडिकुलर को एक साइड में कर देते हैं, रूट ओवर बेस का
हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू क्या हो जा रहा है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब हो जा रहा है 169 माइनस 12 का होता है 144, तो फिर यहाँ पे आ जा रहा है 25, दैट इज इक्वल टू 5। तो हमारा तीसरा साइड 5 हो गया। अब तीनों साइड मिल गया हमें 13, 12 एंड 5। अब इसके बेसिस पे हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इजीली निकाल सकते हैं। तो फिर इस तरह से हम लोग फिफ्थ भी करेंगे, ठीक है। अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो, ये हो गया हमारा 7th क्वेश्चन, ठीक है। 7th क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं, बाकी क्वेश्चन इसी की तरह है ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो फिर इसमें भी एक ट्रायंगल बना लेते हैं पहले। इसमें कॉट का वैल्यू दिया हुआ है, ओके। कॉट का वैल्यू मतलब होता है रिवर्स ऑफ tan, मतलब होगा एक होगा तो आपका ये हो जाएगा बेस बाय परपेंडिकुलर, ओके। बेस बाय परपेंडिकुलर दिया हुआ है, तो फिर बेस है 7, बेस है अपना 7 और परपेंडिकुलर है 8। तो फिर हाइपोटेन्यूज निकालना है, ये इस तरह से करना है। हाँ, तो बेस और परपेंडिकुलर दिया हुआ है जब, तो फिर हमें हाइपोटेन्यूज निकाल लेना है, ये 8 का वैल्यू निकाल लेना है। उसी तरह से बाकी के प्रॉब्लम जैसे किए थे उसी तरह से सॉल्व करना है इसे भी। पहले तो h का वैल्यू निकाल लेना है, h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो फिर पी स्क्वायर हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, दैट मीन्स 64 प्लस 49, दैट इज इक्वल टू 64 और 49 113। इसका कोई स्क्वायर का वैल्यू नहीं होता है, तो फिर h इज इक्वल टू इसको रूट में ऐसे ही रख देंगे, ठीक है, 113 को। अब ये हो गया हमारा थर्ड साइड। अब हम साइन के जगह में जैसे पुट करना है, साइन मतलब है साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो फिर इसी तरह से परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस कर देंगे, मतलब परपेंडिकुलर है आपका 8 बाय रूट के अंदर 113। अब ये एक रैशनल नंबर हो गया। उसी तरह से बाकी के नंबर्स भी मिल जाएंगे, साइन का दूसरा भी यहाँ पे मिल जा रहा है और यहाँ पे कॉस के भी मिल जा रहे हैं। अब इसमें फॉर्मूला लग जाएगा, पहले तो इसमें फॉर्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला ही लगा देना है। इसका फॉर्मूला जब लगा देंगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पे थोड़ा छोटा हो जाएगा, ये 1 माइनस 1 का स्क्वायर मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे खाली कॉस का और साइन का वैल्यू पुट करना। साइन का वैल्यू ये है और कॉस का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनियस, दैट इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनियस मतलब क्या हो जाएगा 7 बाय रूट ओवर 113। बस ये पुट कर देना है और वैल्यू निकाल लेना है। इसी तरह से उसमें और एक क्वेश्चन दिया हुआ है कॉट थीटा का, कॉट स्क्वायर थीटा का। कॉट स्क्वायर थीटा मतलब tan का रिवर्स है, मतलब परपेंडिकुलर बेस की जगह में बेस बाय परपेंडिकुलर कर देना है। यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है, इसको ही खाली रिवर्स करके, सॉरी इसको रिवर्स नहीं करना है, इसको खाली स्क्वायर कर देना है, बस वो हो जाएगा कॉट का वैल्यू। को कॉट के मैटर में ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, खाली ये वाले में थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है, वो भी सिंपल एडिशन सब्सट्रैक्शन वही होना है बस। चलो ये भी कर लेना खुद, अगर प्रॉब्लम हुआ तो कमेंट करके बताना, फिर मैं क्लियर कर दूंगा डाउट। उसी तरह से बाकी के क्वेश्चन भी ट्राई करके देखना। क्वेश्चन नंबर 8 भी इसी के तरह का है। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 भी कुछ इसी तरह का है। इसमें दिया है 3 कॉट a इज इक्वल टू 4। तो इससे हमें एक रेशियो मिल जा रहा है, कॉट a इज इक्वल टू 4/3, मतलब हो गया बेस बाय परपेंडिकुलर। बेस अब के पकड़ लेंगे इनको, बस ये हो जाएगा एक बेस और एक परपेंडिकुलर हो गया। अब बाकी का तीसरा पार्ट निकाल लेना है पाइथागोरस थ्योरम से, मतलब तीसरा पार्ट निकलेगा हाइपोटेनस निकलेगा इसका स्क्वायर 16 और 9 मतलब 5 निकलेगा, ठीक है। तो फिर इसको भी इसी तरह से कर लेना। वैल्यूज पुट करना है, tan की जगह में tan का, cos की जगह में cos का, बस बाकी का प्रॉब्लम इसी तरह से सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी के तरह का है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी सेम है, फिर घर में ट्राई करना बाकी का क्वेश्चंस। अगर कोई डाउट हुआ तो बताना कमेंट करके, मैं रिप्लाई करूँगा और अकॉर्डिंगली हम लोग मिलके सॉल्व कर लेंगे, ओके। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना।
ताकि और अच्छे से वीडियोस बना सके. ओके, टेक केयर, हैव ए नाइस डे. बाय स्टूडेंट्स.